अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। भू भारती बरसगीर पाक व हिंद की तारीख का एक नादिर कानून, किसानों की जमीनों की हदूद का तयन और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए करेंगे काम, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्क का दावा। रियासत तेलंगाना की हमजहत तरक्की के लिए कांग्रेस तेलंगाना हुकूमत कर रही है तमाम तर इक़दाम, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दिलाया अवाम को यकीन। रुकने पार्लियामान हैदराबाद 10 दिवसीय बैरूनी दौरे के बाद हैदराबाद वापस हो गए। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बी जयंत पांडा की क़यादत में अलजायर, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन का किया गया दौरा। शुमाल मशरक़ी रियासतों में सैलाब की तबाहकारियां जारी, ताहाल 40 अमवात, 6 लाख अफराद हुए मुतासिर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने फ़ोन पर हालात का लिया जायजा। और जालिम इसराइली फ़ौज की गाज़ा के मासूम फ़लस्तीनियों पर एक और बदतरीन कार्रवाई, इमदाद के मुंतज़र निहत्ते शहरियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं, 27 मासूम अफराद शहीद, 200 से ज़्यादा ज़ख्मी। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। भू भारती बरसगीर पाक हिंद की तारीख का एक नादिर कानून है। इसका मकसद किसानों की ज़मीनों की हदूद को मुकम्मल तौर पर मुतय्यन करना और मुस्तक़बिल में बगैर किसी तनाज़े के सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। इस सिलसिले में खम्मा में मुनक़िदा एक तकरीब में डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि आज इस कानून पर अमलावरी शुरू रही है और हुकूमत तेलंगाना किसानों समेत तमाम के मसाइल के हल के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। భూభారతి చట్టాన్ని తీసుకుని వచ్చిన తర్వాత ఈ 413 గ్రామాలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపించడానికి రెవెన్యూ శాఖ మార్చులు 413 గ్రామాల సర్వే చేపించి వాటన్నిటికి కూడా మిగతా గ్రామాల్లాగా సర్వేతో సంపూర్ణంగా ఉండేటువంటి బౌండరీస్ అన్నిటిని ఫిక్స్ చేసి ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చేసేటువంటి కార్యక్రమానికి నాంది పలికారు వారు. అందులో భాగంగా మొట్టమొదటి గ్రామంగా పైలట్ ప్రాజెక్టుగా మరి మన జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఈ గ్రామాన్ని ఎంపిక చేసినందుకు ఈ ప్రాంత శాసనసభ్యుడిగా మీ అందరి తరఫున ముందుగా నేను వారికి నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అట్లాగే చేసిన ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా రమ్మని చెప్పి పిలవగానే మనందరి మీద ప్రేమతో ఇక్కడ వచ్చేసినటువంటి వ్యవసాయ శాఖ మంత్రులు గారికి కూడా నేను మీ అందరి తరఫున వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇది అతిథులకి మనం స్వాగతం పలుకుతూ వచ్చిన రెవెన్యూ శాఖ మార్చులు గొప్ప కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్రంలో భూమికి సంబంధించినటువంటి సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఒక చట్టాన్ని రాష్ట్రంలో తీసుకొచ్చారు. ఈ చట్టం ఎంత చారిత్రాత్మకమైనటువంటి చట్టం అంటే ఇటువంటి చట్టాలు చాలా అరుదుగా దేశ చరిత్రలో వస్తాయి. ఇప్పటి వరకు మనం ప్రధానంగా చట్టాల గురించి మాట్లాడుకుంటే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత రాకముందు 1950s నుంచి ఈ సర్వేలు జరిగేటువంటి ప్రక్రియ తోడర్మల దగ్గర నుంచి జరిగే ప్రక్రియ ఉన్నప్పటికీ మనకి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ ప్రాంతానికి భూమి కానీ భూమిపైన హక్కులు కానీ మొట్టమొదటిగా తీసుకొచ్చినటువంటి చట్టం 1950s లో వచ్చినటువంటి తెలంగాణ టెనెన్సీ యాక్ట్. అది కూడా ఆనాడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ ముఖ్యమంత్రి బోరుగుల రామకృష్ణారావు గారు, బొందుగల నరసింహరావు గారు రెవెన్యూ శాఖ మంత్రులుగా ఉండి ఈ ప్రాంత రైతాంగానికి మొట్టమొదటిసారి భూమిపైన హక్కులు కల్పించేటువంటి చట్టాన్ని తీసుకొచ్చి రైతులకి భూమిపైన ఒక గౌరవప్రదంగా ఉండేటువంటి హక్కు కల్పించి వాళ్ళకి చట్టాన్ని తీసుకొచ్చారు. అది ఒక ప్రధానమైనటువంటి చట్టం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత. ఆ తర్వాత 1971లో వచ్చినటువంటి ROR యాక్ట్. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना को तरक्की देने के लिए सियासत को बालातर रखेंगे। उन्होंने भी कहा कि रियासत तेलंगाना की हिम्मत तरक्की के लिए कांग्रेस की तेलंगाना हुकूमत तमाम तर ज़रूरी इक़दाम कर रही है। तेलंगाना कांग्रेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह वीडियो आज शेयर की गई। आइए देखते हैं रेवंत रेड्डी का ये बयान। మిత్రులారా, ముఖ్యంగా యువ మిత్రులారా, డాక్టర్లు, లాయర్లు, ఇంజనీర్లు, ఈ సమాజంలో ఉన్న IAS IPSలకు అందరికీ వ్యాపార వర్గాలకు నా సూచన ఒక్కటే. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏ లక్ష్యంతోనైతే ముందుకు వెళ్తుందో, ఏ లక్ష్యాన్ని సాధించాలి, ఏ లక్ష్యాన్ని ముద్దాడాలి అని మేము ముందుకు బయలుదేరినామో మీ ఆశీర్వాదం ఉండాలి. మీరు అండగా నిలబడాలి. ఈనాడు తెలంగాణ రాష్ట్రం దేశానికి కాదు ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా తీర్చిదిద్దాలంటే మీరందరూ అండగా నిలబడండి, ఆశీర్వదించండి. ప్రపంచంలోనే అగ్ర రాష్ట్రంగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని తీర్చిదిద్ది ఆదర్శమైన రాజకీయాలకు, ఆదర్శవంతమైన అభివృద్ధికి తెలంగాణ రాష్ట్రం కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ గా తీర్చిదిద్దుతాం. హైదరాబాదు నగరాన్ని ప్రపంచ నగరాలతో పోటీ పడే విధంగా తీర్చిదిద్దాలి.
దీనికోసం నిరంతరం పనిచేసే ప్రభుత్వ సిబ్బంది కాదు, రాజకీయ సహచరులందరూ కూడా సంపూర్ణమైన సహకారాన్ని అందిస్తున్నారు. ప్రజలందరికీ 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలకు నూతన రాష్ట్ర ఏర్పాటు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడమే కాదు, భవిష్యత్తు లక్ష్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనందరం కలిసికట్టుగా ఏకమై మనందరం కూడా ముందుకు సాగాలి. మీ అందరి ఆశీర్వాదం ఉండాలి. తప్పకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని దేశంలో అగ్రగామి రాష్ట్రంగా నిలబెడతానని మీకు అందరికీ తెలియజేస్తూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నా. ధన్యవాదాలు మిత్రులారా. रोजनामा सियासत के कायम करदा सियासत हब की जानिब से साइंस इंटरमीडिएट में शानदार मुजाहरा करने वाले तलबा और तालिबात को नकद इनामात, सनद और मिडिल से भी नवाजा गया। लगभग 90% और उससे ज़्यादा निशानात हासिल करने वाले तकरीबन 368 तलबा और तालिबात को अवार्ड देने के लिए दफ्तर सियासत के अहाते में तकरीब हुई, जिसमें जनाब आमिर अली खान MLC, इफ्तिखार हुसैन सेक्रेटरी फैज़-ए-आम ट्रस्ट, असगर अली खान M हमीद माहिर तालीम, सियासत हब के डायरेक्टर जाहिद फारूकी और रियाज अहमद भी मौजूद थे। आमिर अली खान MLC ने तालिबात को बेहतर तालीम गुजारा करने पर मुबारकबाद दी और कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध फतह किया तो इस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। इसी तरह सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ मुक़द्दस फ़लस्तीन को आज़ाद करने का ख्वाब देखा तो बहुत कम उम्र थे। दूसरी जानिब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी कम उम्री में अहादीस याद कर ली थी। ऐसे ही हमारे बच्चों को भी चाहिए कि वो कम उम्री से ही कुछ बड़ा करने का ख्वाब देखें। वाज़ेह है कि 43 तलबा तालिबात ने इंटर साल 2 में 99% से ज़्यादा निशान हासिल किए। जुमला 204 तलबा तालिबात में सरप्राइज़ गिफ्ट के तौर पर ब्रांडेड बोर्ड स्मार्ट वॉच की भी तकसीम आमिर अली खान के हाथों अमल में लाई गई। आप मेहनत करें, लेकिन पीछे वालिदैन का हाथ होता है, दादा दादी का, नाना नानी का हाथ होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोग जो आज इतने मार्क्स लाए हैं वो कौम का एक बहुत बड़ा असासा है, जो कल के दिन कौम की तकदीर बदलने में कामयाब हो सकता है। आप इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि हमें ये भी याद करना चाहिए कि तारीख़ इस बात की गवाह है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब्ज़ा किया था तो उनकी उम्र 17 साल थी। उसी तरीके से सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी जब ये सोचे कि जेरूसलम को आज़ाद कराना चाहिए तो उस वक्त भी उनकी उम्र, बल्कि वो भी एक तालिब इल्मी थे। तो और इसके अलावा भी अगर देखेंगे तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो पूरे अहादीस का जहाँ पे जिक्र दिया जाता है तो वो भी अपनी टीनेज के दौरान ही ज़्यादातर अहादीस को जमा कर लिए थे और याद कर लिए थे पूरे। तो ऐसा ही अगर देखें तो ये तो रोल मॉडल्स हैं। यकीनन रोल मॉडल तो हर एक का होना चाहिए कि किस तरह हमारे को हमारी ज़िंदगी बेहतर बनाना चाहिए। इसके लिए तो मैं समझता हूँ कि आज आप लोग जिस तरह यहाँ पे आए हैं, मैं ये बात ज़रूर कह सकता हूँ कि आपके अंदर जो तरक्की की आग है वो सुलग चुकी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर्स भी बनने जा रहे हैं। जब BPC की बात आई तो मैं बोला कि 90% तो लोग फिर नीट के लिए अप्लाई करेंगे और मेडिसिन के लिए चले जाएंगे आप लोग। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अंग्रेज़ी में एक ये कहावत है कि आप ये मत समझिए कि यू कैन नॉट। बहुत सारे लोग रहेंगे जो आपसे ये कहेंगे कि आप नहीं ये आपसे नहीं हो सकता। नहीं, अगर अल्लाह की मदद आपको मिलती रही तो मैं समझता हूँ कि आप नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं। इंग्लिश में एक कहा जाता है कि सीक नॉलेज बिकॉज नॉलेज इज़ नूर, रोशनी है। उसी तरीके से वर्क हार्ड बिकॉज हार्ड वर्क इज़ इबादत, इट्स लाइक वर्कशिप। और सर्विस टू ह्यूमैनिटी एक सुन्नत का पैगाम होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ लेके जब आप आगे डॉक्टर बन के निकलेंगे या अपनी जो भी फील्ड आपकी रहेंगी उसमें आप लोग नाम कमाएंगे तो आप मुसलमानों के एक ब्रांड एम्बेसडर बन के आगे बन सकते हैं। जिस तरीके से जो कम्युनिटी को तरीके से 10 साल से किसी ना किसी तरीके से जो लेबल किया जा रहा है उसको टैकल करने में आप लोग बहुत बड़ा काम अंजाम दे सकते हैं। और मुझे ये उम्मीद है एक चैलेंज भी है आगे, अवार्ड भी मिल रहे हैं माशाल्लाह, मुबारक आप सबको। लेकिन आप लोगों के लिए एक चैलेंज है क्योंकि अक्सर लड़कियां जो हमारा माशरा ओल्ड सिटी का माशरा जो होता है वो ये होता है कि
थोड़ी सी तालीम देकर उनको जो है शादी के बंधन में बांध दिया जाता है, तो उससे आपको फाइट करना है, वो आपका चैलेंज है। तो मैं ख़ास तौर से वालिदैन को, जो लड़कियां हैं उनके वालिदैन से भी मैं गुजारिश करूंगा कि अगर लड़की का कोई गोल है और वो जो है हासिल करना चाहती है तो लिल्लाह उसको जो है रोकिए मत आप, वरना रोकने से क्या होगा, उनकी ज़िंदगी जो सुकड़ जाएगी। और जो लड़की चाह रही है कि वो कुछ बन के बताए, कुछ अपने पैरों पे खड़ा होकर अपने फैमिली को जो है कि किफ़ालत करे, वो उससे ख़ानदान वाले भी महरूम हो जाते हैं। तो थोड़ी सी फ़राग दिली का आप लोग मुजाहरा करिए। वालिदैन से कह रहा हूँ कि जो बच्चियाँ यहाँ तक पढ़ी हैं, वरना इंटर पढ़ के जब वो कॉलेज में जाएंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको डिग्री करके उसको घर में बिठा कर उसकी शादी की बात मत करिए, पढ़ने दीजिए उनको, जो भी कुछ करना है करिए। और उससे फ़ायदा दोहरा होगा। फ़ायदा ये होगा कि जब लड़की पढ़ के जो कुछ काम काज करके कुछ कमा कर जब शादी की बात होगी, तो आप ये यकीन मानिए कि आपको जहेज़ के लाने से आप जो है आप उसका छोड़ देंगे। और हमारी ये तहरीक भी है सियासत की और फैज़ आम की एक तहरीक है, जो जहेज़ की लानत के बाद से हम बहुत कुछ काम कर रहे हैं। सेटविन पुरानी वली पुराने शहर हैदराबाद में ख़वातीन में 30 सिलाई मशीनें तकसीम की गई। उम्मीद तासीस तेलंगाना के हवाले से तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया था। रोटरी क्लब के ताउन के साथ सिविंग मशीनों की तकसीम अमल में लाई गई है। सिकंदराबाद के महिंद्रा हिल्स में एयर वाल्व टूट जाने के बाद पानी का बड़े पैमाने पर अखराज हुआ, जिससे इलाके में पूरा पानी भर गया, जिसके फौरी बाद सिकंदराबाद वार्ड 5 में तिरमती कॉलोनी के मकी रोड ने मुतल्लिका हुकाम को फौरी तौर पर इस बात की इत्तला दी और इस मसले को हल किया गया। स्क्रीन पर आप ये मनासिर देख सकते हैं। तेलंगाना के ज़िला जोगलांबा गदवाल की कॉलोनी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब आधी रात के करीब एक मगरमच्छ अचानक आबादी में दाखिल हो गया। इस गैर मुतवक्को वाक़े ने मुकामी अफराद में शदीद खौफ व हिरास पैदा कर दिया। यानी शाहिदीन के मुताबिक जब लोगों ने मगरमच्छ को गलियों में देखा तो फौरी तौर पर इसे रस्सी की मदद से काबू में किया ताकि किसी किस्म का जानी नुकसान न हो। शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि मगरमच्छ करीबी जराला प्रोजेक्ट की दाएं नहर से भटकर कॉलोनी में पहुंचा। मुकामी अफराद ने महकमे जंगलात से फौरी मुदाखलत की अपील की। साथ ही उन्होंने यह भी मुतालबा किया कि कॉलोनी के अतराफ मौजूद घनी और खारदार झाड़ियों की सफाई की जाए, क्योंकि यही झाड़ियाँ जंगली जानवरों की आमदरफ्त का रास्ता बनी हुई है। इलाके के अवाम ने हुकाम से दरख्वास्त की कि इस तरह के वाक़यात के तदारुक के लिए मौसर इक़दामात करें ताकि अवाम की जान व माल को लाहक ख़तरात से बचा जा सके। शहर हैदराबाद में चलती कार में आग लग गई। ये कार गच्चीबौली से माधापुर की सिम जा रही थी कि अचानक इसमें आग लगने का वाक़या पेश आया। तमाम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गाड़ी में सवार ड्राइवर मुसाफिर बर्बश शोले भड़कते देखकर गाड़ी से बाहर निकलने में कामयाब रहे। इंजन में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह समझा जा रहा है, जिसके नतीजे में कार जलकर खाकिस्तर हो गई। आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने बर वक्त कार्रवाई की और आग पर काबू पा लिया गया। वाक़े के दौरान सड़क से गुजरने वाले दीगर राहगीरों और ड्राइवरों में कुछ देर के लिए सनसनी देखी गई। शहर हैदराबाद के आसिफ नगर इलाके के रिहायशी 35 साल शख्स ने 14 ग्राम सोने की चेन चोरी करने के बाद इसे फरोख्त करने की कोशिश की। मेहदीपट्टनम क्राइम पुलिस ने 24 घंटों में इस केस को बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ हल करते हुए सारिक को गिरफ्तार कर लिया और इसे अदालती तहवील में भेज दिया गया है। पुलिस हुकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सिलसिले में तफसीलात से आगाह किया। सुबह 7:20 AM को चंद्रकला विक्टिम मिल्क पैकेट लेके आने के लिए बाहर आती है। फिर उसके बाद वापस घर जाने समय में अक्यूज्ड मोहम्मद नजीब एक नंबर प्लेट लेस बाइक के ऊपर आके बाइक थोड़ा 100 मीटर दूर पार्क करके पैदल आके विथ वेयरिंग हेलमेट लगा के पैदल आके उसको पूछते हैं विजयनगर कॉलोनी इदेना, पूछ के फिर वो आंसर देते हैं और टर्न होते समय उसको ये नेक में 2 तोला 20 ग्राम्स गोल्ड चेन उसको खींचते हैं और स्कफलिंग में इसको 14 ग्राम्स का इनका हाथ को आता है, बाकी 6 ग्राम का विक्टिम का पास ही है। ये 14 ग्राम लेके जाके उसका घर में रखते हैं अक्यूज्ड। फिर इसके बाद अपन पूरा सीसी फुटेज वेरीफाई करके फाइन ट्यून करके नैरो डाउन करके 24 आवर्स में विद इन ए डे में ये केस डिटेक्ट किया है।
और ये अक्यूज्ड क्या है ना, ये फर्स्ट टाइम ऑफेंस है। ये गेमिंग को एडिक्ट हुआ है, गेमिंग और बेटिंग को एडिक्ट हुआ है, उसमें लॉस है। फिर ये इजी काम है, कोई चेन स्नैचिंग होने तो उनको तुरंत अच्छा मिलता है करके ये इजी काम के लिए इसको ये किया है। इसमें वो मॉर्निंग आया था, आके रेकी किया है। रेकी कैसे किया है, एलोन विक्टिम को चूज किया है और नेबर्स भी सब अंदर थे, इसलिए ये इजी टारगेट हुआ है। वो खींच करके लेके गया था। फिर उसके बाद तुरंत हमको फर्स्ट को ही पिटिशन आया था 11 बजे। तुरंत अपना क्राइम टीम अंडर द लीडरशिप ऑफ DI बालकृष्ण मेदीपट्टनम एक टीम मजलिस के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ऑल पार्टी वफ्द के एक रुकन बीजेपी रुकन पार्लियामान बीजेएन पांडा की क़यादत में अलजायर, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन का दौरा मुकम्मल करने के बाद हैदराबाद एयरपोर्ट पहुँच गए। इस वफ्द ने दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तानी कार्रवाइयाँ, ऑपरेशन सिंदूर और ताज़ा सूरत हाल के हवाले से हम ख्याल ममालिक को आगाह किया है। असद ओवैसी ने मीडिया से फौरी तौर पर कोई बातचीत नहीं की, ताहम बीजेएन पांडा ने इस हवाले से तफसीली बयान दिया। आतंकवाद के खिलाफ कदम उठा चुके हैं और वो उनका स्टैंड भी स्पष्ट है। वो भारत को समझते हैं। भारत की इतिहास ऐसी है कि हमें जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। हम वो देश हैं जो हजारों साल तक दुनिया के बहुत सारे जगहों से जो पीड़ित लोग उनको आश्रय दिए हैं। हम अहिंसा के देश हैं। हम गए थे फैक्ट्स एंड फिगर्स देने के लिए। पहलगाम की आतंकवाद का हिंसा कांड के बारे और उसके बाद जो लड़ाई हुआ, जिसमें भारत का नया नॉर्मल कि हम आतंकवादी हिंसा को जरूर रिटेलिएट करेंगे और माप कर बिल्कुल प्रिसाइज तरफ से रिटेलिएट करेंगे। और उसके बाद जो इकोनॉमिक सैंक्शंस भी हम किए हैं, व्यापार पर, वीजाज पर, शिपिंग, पानी पर, ये हम कर रहे हैं। उद्देश्य है हमारा कि पाकिस्तान उसके गलत नीतियों को बदलाए और आतंकवाद को जो खुल्लम खुल्ला वो समर्थन करते हैं उसको बंद करें। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 10-11 साल से इन देशों के नेतृत्व के साथ बहुत ही अच्छा संबंध बनाए हैं और इन्होंने आदरणीय मोदी जी को उनके देश के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स भी दिए हुए हैं। भारत का जो ग्रोथ अभी हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब देश भारत को एक अपॉर्चुनिटी के तरह देख रहे हैं और हमारे साथ मिलकर न केवल आतंकवाद के खिलाफ परंतु अन्य विषयों पर भी मिलकर काम। ईद उल अज़हा की आमद है। इसी हवाले से करीमनगर कलेक्ट्रेट में एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। मुस्लिम कायदीन और ज़िला उहदेदारान के अलावा कलेक्टर समेत दीगर अफसरान ने इसमें शिरकत की। इस मौके पर मुस्लिम कायदीन ने यकीन दिलाया कि ईद के मौके पर वो कवानीन और ज़वाबित का भरपूर ख्याल रखेंगे। कमिश्नर ऑफ पुलिस गौस आलम ने कहा कि ईद के मौके पर गैर मुतल्लिक़ा अफराद को कानून हाथ में न लेने का इंतबाह दिया गया है। पुलिस ने किसी भी किस्म की झूठी अफवाहों पर तवज्जो न देने की अपील की। के एस्पेक्ट है। नमाज के लिए जैसे हमारा हर ईद में अरेंजमेंट रहता है और जैसे आप लोग की तरफ से रिक्वेस्ट भी आया है, हर ईदगाह के पास, हर मस्जिद के पास जहाँ भी नमाज अदा होगी वहाँ पर ट्रैफिक और जनरल लॉ एंड ऑर्डर के लिए बंदोबस्त रहेगा, क्राउड मैनेजमेंट के लिए। और पुलिस के साथ साथ आप लोग के वॉलंटियर्स का भी हमें हेल्प जरूरत रहेगा, जो फैसिलिटेट करे क्राउड मूवमेंट, जो बता सके बाकियों को इधर गाड़ी पार्किंग अलाउड है, इधर से क्राउड मूवमेंट अलाउड है। वैसे तो नमाज से रिलेटेड हमारा बंदोबस्त प्लान जैसा रहा है वैसे ही पुराने बंदोबस्त जैसा ही इस बार भी करेंगे। उसमें कहीं किसी पॉइंट में किसी को दिक्कत है कि इस जगह पे सर ज्यादा बंदोबस्त रखिए, यहाँ पे लास्ट टाइम दिक्कत हुआ था, या ट्रैफिक में ये चेंजेस कर सकते हैं, इससे काफी आसानी हो जाएगी, तो वो भी हम इनकॉर्पोरेट करें। अभी नहीं तो बाद में मीटिंग के बाद में पीसीपी टाउन से आपको बता सकते हैं। दूसरा रहा जो कुर्बानी का मैटर है, वो कम्युनिटी सेंसिटिव मैटर है, खाली तेलंगाना में पूरे इंडिया में है। उसका रीजन ये है कि जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस है मेनली काउ स्लॉटर को लेके हिंदू कम्युनिटी में, तो उसकी वजह से काफी सेंसिटिव हो जाता है मामला। तो उसको एनफोर्स करने के लिए काफी कानून भी बनाए गए।
काफी लोगों को यहाँ कानून से रिलेटेड बातों का भी क्या बोलते नॉलेज नहीं है। उन्होंने भी मेरे को रिक्वेस्ट किया बताने के लिए, तो एक एक करके मैं कानून के बारे में बताऊँ। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी एक रोज़ा दौरे पर भोपाल पहुंचे, जहां कांग्रेस लीडर और पार्टी कारकुनों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। राहुल गांधी कांग्रेस के दफ्तर पहुंचे और इंदिरा गांधी के मुजस्समे पर फूल मालाएं चढ़ाई। राहुल गांधी ने कांग्रेस हेडक्वार्टर में लगातार 3 मीटिंगों में शिरकत और खिताब कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने रियासती कांग्रेस के दफ्तर में सियासी उमूर की कमेटी से मुलाकातें की। एमपी कांग्रेस के 64 अरकान असम्बली ने राहुल गांधी के साथ इस मीटिंग में शिरकत की है। हिंदुस्तान भर में कोरोना इन्फेक्शन के एक्टिव केसेस की कुल तादाद मंगल की सुबह बढ़कर 4026 तक पहुंच गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में इस इन्फेक्शन की वजह से मजीद 5 मरीजों की मौत की इत्तलात हैं, जिससे मरने वालों की तादाद 37 हो गई। मरकजी वज़ारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 2700 मरीजों को सेहतियाब हो जाने के बाद हस्पताल से रुख्सत भी दे दी गई और गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 65 एक्टिव केसेस रिपोर्ट हुए। मरने वाले 5 मरीजों में एक केरला, तमिलनाडु, मगरबी बंगाल से है और 2 महाराष्ट्र से हैं। वज़ारत सेहत ने कहा कि कोविड की सूरत हाल पर नज़र रखी जा रही है। लोगों से अपील की गई है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और पुरजुम इलाकों में जाने से एहतियात किया जाए और फिर मास्क का इस्तेमाल करें ताकि बीमारियों से महफूज रह सकें। शुमाल मशरक़ी रियासतों में शदीद बारिश और लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात से तबाही मच गई। 29 मई से अब तक 6 रियासतों में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग की जद में आकर 40 लोगों की मौत की तस्दीक कर दी गई है, जबकि इस कुदरती आफत की वजह से 6 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासर हुए। सबसे ज़्यादा आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश पर असर पड़ा है। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने भी मुतासरा रियासतों के चीफ मिनिस्टर से फ़ोन पर बातचीत की और हालात का जायज़ा लिया और हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। मरकज़ी हुकूमत मुतालिका रियासतों की हुकूमत के साथ राब्ते में है। ज़रूरत पड़ने पर इजाफी NDRF फौज और दीगर मरकजी एजेंसियों की तैनाती के लिए भी तैयारियां कर ली गई हैं। और बात करेंगे अर्ज़ फ़लस्तीन की। क़ाबिल इसराइली फ़ौज ने गज़ा के मासूम फ़लस्तीनियों पर एक और बदतरीन कार्रवाई की और इमदाद के मुंतज़र निहत्ते शहरियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं, जिसमें 27 मासूम जानें चली गईं, जबकि 200 से ज़्यादा अफराद को गोलियों से छन्नी करके ज़ख्मी कर दिया गया। सैकड़ों फ़लस्तीनी मर्द, औरतें और बच्चे भूख और प्यास से निढाल ज़िंदगी की आखिरी उम्मीद के तौर पर इमदादी मरकज़ की जानिब रवां दवां थे। इस दौरान अचानक जालिम इसराइली फ़ौज की ज़मीनी गाड़ियों, जंगी हेलीकॉप्टर और फ़िज़ाई ड्रोन से इन पर गोलियां बरसाई गईं। वो चीखते चिल्लाते ज़ख्मी होकर गिरे और उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। इनमें बेशतर वो लोग थे जो मुसलसल कई रोज़ से खुराक और पानी के ख़तरे को तरस रहे हैं। उनके जिस्म कमज़ोरी से निढाल हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने तस्दीक की कि सुबह सवेरे की गई इस बदतरीन दरिंदगी के नतीजे में कम से कम 27 फ़लस्तीनियों की शहादत हुई है, जबकि दर्जनों शदीद ज़ख्मियों को अस्पताल ले जाया गया, जिनमें कई की हालत नाजुक है। ये पहला वाक़या नहीं है कि इमदाद के इन मराकज़ पर हमले हुए हैं। इससे पहले भी हमले हो चुके हैं, जिसमें अब तक 99 फ़लस्तीनी शहीद हुए और 600 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। और अब बात करेंगे हज बैतुल्लाह के हवाले से। मनासिक हज का कल आगाज़ हो रहा है। सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला शहज़ाद अब्दुल अज़ीज़ ने सिक्योरिटी और हिफाजती इंतज़ामात का जायज़ा लिया है। मैदान अरफ़ात में एक जदीद फील्ड हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया गया, जिसमें 100 बिस्तरों की गुंजाइश है। जारिया साल हज 4 जून बरोज़ चाशमा यानी कल से शुरू हो जाएगा। हज के दौरान जदीद स्मार्ट हेल्थ ब्रेल सिस्टम भी मुतारिफ़ कराया गया है, जो सिक्योरिटी हुकाम को हाजियों की सेहत की निगरानी में मदद देगा। इसके ज़रिए वज़ारत दाखिला के मुतालिका हुकाम को फौरी इत्तलात मिलेंगी कि किसी जगह हाजियों को कौन सी तिब्बी मुश्किलात हैं, ताकि फौरी कार्रवाई हो सके। सऊदी अरब की क़यादत ने हुज्जाज इकराम की हिफाजत के लिए तमाम मुमकिन वसाइल का इस्तेमाल किया, जिसके मुस्बित नतीजे सामने आ रहे हैं। इस दौरान वज़ीर दाखिला ने मुक़द्दस मकामात के इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मुआयना किया, जिसमें गर्मी के असरात कम करने के लिए निमरा मस्जिद में शेड और कूलिंग के नए निज़ाम का जायज़ा भी शामिल है। ये तैयारियाँ हुज्जाज इकराम की आसानी, सेहत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए की गई, ताकि जारिया साल 2025 का हज मुकम्मल सुकून और इत्मीनान के साथ अदा किया जा सके। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। भू भारती बरसगीर पाक व हिंद की तारीख का एक नादिर कानून, किसानों की ज़मीनों की हदूद का तयन और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए करेंगे काम। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्क का दावा। रियासत तेलंगाना की हमजहत तरक्की के लिए कांग्रेस तेलंगाना हुकूमत कर रही है तमाम तर इक़दाम। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दिलाया अवाम को यकीन।
रुकने पार्लिमान हैदराबाद 10 दिवसीय बैरूनी दौरे के बाद हैदराबाद वापस हो गए। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बी जयंत पांडा की क़यादत में अलजायर, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन का किया गया दौरा। शुमाल मशरक़ी रियासतों में सैलाब की तबाहकारियां जारी, ताहाल 40 अमवात, 6 लाख अफराद हुए मुतासिर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने फ़ोन पर हालात का लिया जायजा। और जालिम इसराइली फौज की गाजा के मासूम फ़लस्तीनियों पर एक और बदतरीन कार्रवाई, इमदाद के मुंतज़र निहत्ते शहरियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं, 27 मासूम अफराद शहीद, 200 से ज़्यादा ज़ख्मी। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।